Good afternoon to all of you. Today's we start our class in the fourth unit. The new topic is the reinforcement learning. Okay, dear students, reinforcement learning start करने से पहले हम लोग एक चीज समझ लें कि जैसे अभी तक हम लोग सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड वन इज reinforcement learning. सो आपको लगभग लास्ट टू सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया है। बहुत सारी एल्गोरिथम्स, बहुत सारी मेथड्स वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक टिल द 3.5 यूनिट्स वी हैव कंप्लीटेड. And today we start the reinforcement learning. Okay, reinforcement learning is not new for you because we have already defined about the reinforcement learning in the first unit to you in the class in the college. Okay, so again we discuss here, as you know very well, reinforcement learning. Reinforcement learning means we don't have any knowledge to we have no knowledge, we have, suppose we have no uh, large data or huge data, we have only the short data set for learn to the machine or learn ourselves. Okay, so we use the reinforcement learning techniques to hit and trial base. Suppose you want to learn, suppose you downloaded a game in your computer or in your mobile phone, and you don't know how we operate, how we uh, how we operate that game. So first we read some text if available on that game. Otherwise we just hit and try, we just click or we just take some actions, and if actions is successful, then we get some reward, and store that information to in our memory to learn ourselves or learn to the machine. If we if we fail, if we fail, then we will discard that action from our data set, from our memory. Okay. So reinforcement learning, first uh, in the reinforcement learning, we are training to the machine whenever we have no whenever no large number of data sets. Okay, so that time we use the reinforcement learning, and first we discuss here this diagram. We discuss here some this diagram for reinforcement learning. Then we will discuss in detail the reinforcement learning. As you know, you are watching this diagram here. One is the agent and another is the environment. Two entities are displaying here. Agent means agent किसको आप बोलेंगे? Agent means who is performing the job, जो एक्शन ले रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एजेंट, है ना. एजेंट क्या करता है? कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक्शन को लेने के लिए एजेंट एक एजेंट, जैसे कि आप अगर गेम प्ले कर रहे हैं कोई हिट एंड ट्रायल पर, आप एक गेम को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर द एजेंट, है ना. सो आप एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के लिए यू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. आप एजेंट हैं और इन्वायरमेंट से आपका इंटरेक्शन है, और आप डिफरेंट नंबर ऑफ एक्शंस लेते हैं कि एक्शन ए टी, टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 वट एवर, तो डिफरेंट नंबर ऑफ एक्शंस आप ले रहे हैं. अगर वो एक्शंस लेने पर इन्वायरमेंट में, जहाँ पर भी अपन जहाँ से भी लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपन ने इन्वायरमेंट बोला है ना. तो अपन एक्शन ले रहे हैं और एक्शन लेने पर इन्वायरमेंट में एक्शन लेंगे, और अगर इन्वायरमेंट से आपको क्या मिल रहा है? रिवार्ड अगर मिल रहा है, इफ यू गेट द रिवार्ड टू द एजेंट, दैट टाइम स्टेट, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपको रिवार्ड मिल रहा है, तो वो एजेंट अपने पास स्टोर करके रखता है उसको. अदरवाइज उसे वो क्या करेगा? डिस्कार्ड करेगा, है ना. तो ये सारी चीजें
यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है ये दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की टेक्निक्स हम लोग कहाँ से लेके आए, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस से लेके आए हैं। ये थोड़ा सा मेरे को आपको इंट्रोडक्शन बताना था। इंट्रोडक्शन बताने के बाद अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग of the reinforcement learning. Okay, so here we can see here the difference between them is that deep learning, just a minute. uh, आप the difference between them is that deep learning is learning, डीप लर्निंग इज लर्निंग फ्रॉम अ ट्रेनिंग सेट। डीप लर्निंग में हम लोग कैसे लर्न करते हैं, ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट जो होता है उसके थ्रू हम लोग लर्न कराते हैं मशीन को। ओके, देन अप्लाइंग दैट लर्निंग टू अ न्यू डेटा सेट। ओके, वाइल रीइंफोर्समेंट लर्निंग की अगर अपन बात करें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि इज डायनेमिकली लर्निंग बाय एडजस्टिंग एक्शंस। हमें क्या करना है यहाँ पर, dynamically adjusting actions based in continuous feedback to maximize a reward, है ना। तो हम क्या करेंगे, एजेंट जो होता है, एजेंट बहुत सारी एक्शंस लेता है, कंटिन्यूसली एक्शन लेता है, डायनेमिकली एक्शन लेता है, हमें पता भी नहीं रहता कि नेक्स्ट एक्शन हमें क्या लेने वाले हैं। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि जब हम मशीन को लर्न करा रहे होते हैं तो हम स्टैटिकली और डायनेमिकली, दो कीवर्ड आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द 6th सेमेस्टर, सो यू नो वेरी वेल कि डायनेमिकल क्या होता है और स्टैटिकल क्या होता है। डायनेमिकल मीन्स जो भी एक्शन आपको लेना है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या मशीन को ट्रेन करने के लिए, दैट टाइम आप पहले से नहीं जानते हैं उसको। डिपेंड करेगा कि आपको क्या सिचुएशन मिल रही है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या डिसीजन या क्या एक्शन लेने वाले हैं, है ना। और उससे जो भी रिवार्ड हमें मिल रहा है ना, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की एक्शन लें कि जिससे कि हमारा फीडबैक या जो हमें मैक्सिमाइज रिवार्ड हमको मिल सके इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्लियर, एक एग्जाम्पल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सपोज एन एग्जाम्पल ऑफ LSTM आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इन जनरल कैन बी यूजफुल इन अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग डोमेन, है ना। दोनों को ही हम LSTM और रीइंफोर्समेंट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज कर सकते हैं। दोनों ही आप अपन लोग लास्ट क्लासेस में अपन लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। इसी तरीके से however there is a typical an assumptions that your state is Markovian. RNN might do better here since it can remember, है ना, ये आप जानते हैं previous state and use those to make future assumptions। तो reinforcement learning में RNN का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि RNN में क्या होता है कि आप प्रीवियस स्टेप्स, प्रीवियस स्टेट क्या रही है, प्रीवियस इनपुट क्या आया, प्रीवियस रिजल्ट्स क्या जनरेट हुए, उसको हम स्टोर करके अपने पास रखते हैं। और इन फ्यूचर एजम्पन्स के लिए हम लोग प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस रिमेंबर जो हमने करके रखी है, आउटपुट्स या इनपुट्स जो भी आया था, उसको फ्यूचर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए RNN काफी यूजफुल होता है फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, है ना। अब इसके बाद अब क्या होता है कि द सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ एजेंट्स दैट लर्न टू क्रिएट सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज यूजिंग लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स, है ना। तो सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज किसको बनानी पड़ती है, एजेंट्स को बनानी पड़ती हैं, जिसकी हेल्प से हम मतलब मशीन को हम लर्न करा रहे हैं और एजेंट कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएगा जिससे कि लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स हमें मिलते रहें। The learning model is implemented using a long short-term memory recurrent network with reinforcement learning। क्लियर। अब इसके बाद reinforcement learning is an area of machine learning। We know this is the type of the machine learning। In the absence of training data sets, आप देखिए क्या हो रहा है, ट्रेनिंग डेटा सेट होगा तो ही आप मशीन को लर्न करा सकते हैं। बट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, एब्सेंस है, ट्रेनिंग डेटा सेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो देन हाउ यू विल ट्रेन टू द मशीन, इट इज बाउंड टू लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस। ओके, एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, वी हैव एन एजेंट and a reward with many hurdles in between. The agent is supposed to find the best possible path to reach the reward। Clear? तो इस तरीके से दिस इज एग्जाम्पल।
आप एक छोटा सा एक रियल क्या बोलेंगे अपन, डीप री लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी हो सकती है। इज अबाउट टॉकिंग द बेस्ट एक्शन फ्रॉम व्हाट वी सी एंड हियर। जो भी हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसके बेस पर हमको बेस्ट डिसीजंस लेने हैं डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL has a higher barrier in learning the concept and the लिंगुअस। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक फ्रेमवर्क अपन ने डिस्कस किया। देन वी कम्स टू आवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एज यू नो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज नोन एज अ सेमी सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। इसे अपन सेमी सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज तो बोल ही नहीं सकते। सेमी सुपरवाइज में कम से कम, सेमी सुपरवाइज का मतलब है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से दे दिए गए, कुछ थोड़े से, पूरा नहीं, है ना, पूरा सब कुछ नहीं, कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आपको मिल गई हैं, आधी अधूरी। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, सेमी सुपरवाइज्ड। क्या आपको पता है कि आपको क्या करना है, अब कैसे करना है वो कुछ कुछ ही इंफॉर्मेशन है, तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो इज अ टेक्निक टू अलाउ एन एजेंट टू टेक एक्शंस एंड इंटरेक्ट विद एन environment so as to maximize the total rewards. RL is usually modeled एज अ मार्कओव डिसीजन प्रोसेस। इस डायग्राम को अपन ने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि एजेंट और एनवायरनमेंट टू यहाँ पर एंटिटीज बोल सकते हैं अपन उसको। Both are interact to each other. Key agent interact to the environment and take some actions on the environment, and after that, if the agent is take the right actions, that time environment provide the reward to the agent, है ना। इन द आल्सो स्टेट, किस स्टेट में, स्टेट इसकी रहती हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में ये रिवार्ड हमको मिला है और ये सेक्शन को लेते हुए। तो इस तरीके से इसे अपन मार्कओव डिसीजन प्रोसेस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मार्कओव डिसीजन प्रोसेस। मार्कओव डिसीजन प्रोसेस को आप डिफाइन करिए। तो आपको क्या करना है कि आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर बेस्ड है मार्कअप डिसीजन प्रोसेस, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पूरा आपको एक्सप्लेन करना है इधर से लेके यहाँ से। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को आप एक्सप्लेन करेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। देन इस डायग्राम को स्पेशली समझाएंगे आप, क्योंकि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मार्कअप डिसीजन प्रोसेस, है ना। और इसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद कुछ और एग्जांपल्स भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कोई बेबी है घर में, है ना, और उसे टीवी का रिमोट दे दिया जाए। आपके घर में कोई बेबी है, उसको आपने एक टीवी का रिमोट दे दिया और उसको पता नहीं है कि हाउ एट योर होम, होम मतलब इन्वायरमेंट, है ना, और बेबी मतलब एक एजेंट है। बेबी क्या है, एक एजेंट है, और टीवी क्या है यहाँ पर, या होम आपके घर पर टीवी लगी हुई है, वो एक पूरा एक एनवायरनमेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से ऑब्जर्व दैट कंस्ट्रक्ट इज ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। वो बेबी क्या करेगा, फॉल फर्स्ट ऑब्जर्व, कुछ ऑब्जर्व करेगा एनवायरनमेंट से, है ना, कुछ दिमाग लगाएगा कि अपने क्या करना चाहिए, कौन सा बटन दबाना चाहिए, कौन सा नहीं दबाना चाहिए, थोड़ा बहुत कोशिश करेगा। Then the curious baby will take certain actions like and hitting the remote control, है ना। क्यूरियस बेबीज जो थोड़े से दिमाग से चालू रहते हैं, कुछ 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 करने की इच्छा है, कुछ करना चाह रहे हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं कि उसको बार बार एक्शन परफॉर्म करेगा और ऑब्जर्व हाउ वुड द टीवी रिस्पॉन्स, टीवी किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है। नेक्स्ट, अगर दे रही है रिस्पॉन्स तो ठीक है, आगे बढ़ेगा, उस स्टेट को कुछ रिमेंबर करने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। ऐसे कंटिन्यूस वो एक्शन परफॉर्म करता रहता है ना। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे टीवी को ऑपरेट करना सीख जाता है। एज अ नॉन रिस्पॉन्डिंग टीवी इज डल, द बेबी डिसलाइक इट, है ना, रिसीविंग अ नेगेटिव रिवॉर्ड एंड विल टेक लेस एक्शंस दैट विल लीड टू सच अ रिजल्ट। ओके, अपडेटिंग द पॉलिसीज एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस चलता है कि द बेबी विल रिपीट द प्रोसेस अंटिल ही शी फाइंड्स अ पॉलिसी, ओके, what to do under different circumstances that he she is happy with maximizing the total डिस्काउंटेड और रिवार्ड्स, है ना, तो वो बहुत हैप्पी होगा। तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
वी कैन गिव इन द एग्जाम कि बेबी का एक एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं उसको समझने के हिसाब से, ठीक है। Now we comes to the in detail reinforcement learning. The study of reinforcement learning is to construct a mathematical framework to solve the problems. Okay, uh, कैसे solve कर सकते हैं आप लोग कि for example to find a good policy we could use value based methods, है ना। तो reinforcement learning के लिए कुछ value based methods हम लोग use कर सकते हैं like Q learning, है ना। Q learning एक value based method है जिससे आप reinforcement learning को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्यू लर्निंग टू मेजर हाउ गुड एन एक्शन इज in a particular state or a policy based method to directly find out what actions to take under different states without knowing how good the actions are। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें आती हैं, है ना। आप लोग ध्यान से समझना मेरी क्लास को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल आस्क a question to you related to the reinforcement learning. Okay. Now, however, the problems we face in the real world can be extremely complicated in many different ways, and therefore, a typical reinforcement learning algorithm has no clue to solve. Okay, for example, the state space is very large in the game of Go. Environment cannot be fully observed in poker game, and there are lots of agents interact with each other in the real world, है ना? So researchers have invented method to solve some of the problem by using a deep neural network to model the desired policies, okay, value functions or even the transitions models, which therefore is called the deep reinforcement learning। तो रिसर्चर ने बहुत सारे मेथड्स वगैरह डेवलप करके रखे हैं जिसके बेस पर हम लोग मतलब उसमें क्या डीप री लर्निंग मेथड्स हैं जिसके बेस पर रिसर्च किया जा सकता है, रिसर्च किया जाता है ना। अब इसके बाद इन अ टिपिकल, अब एमडीपी वही चीज़ आ गई कि मार्कअप डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, वो ही आपको जो मैं आपको बता रहा था वही अगेन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इन अ टिपिकल रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम देयर इज अ लर्नर एंड अ डिसीजन मेकर कॉल्ड एजेंट, है ना, एंड द सराउंडिंग विथ विच इट इंटरेक्ट्स इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। ओके, ये एनवायरनमेंट की बात हो गई यहाँ पर, है ना। द एनवायरनमेंट इज रिटर्न प्रोवाइड रिवार्ड्स एंड अ न्यू स्टेट के थ्रू, है ना, एक्शंस ऑफ द एजेंट्स, है ना। सो reinforcement learning we do not teach an agent how it should be something, but present it with rewards whether positive or negative based on its action, है ना। So our root question for this class is how we formulate any problem in reinforcement learning mathematically. This is where the Markov decision process comes in. क्लियर। आपसे पूछा जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग सॉरी मार्कअप डिसीजन प्रोसेस की क्या जरूरत है, तो आप बता सकते हैं उसके अंदर कि किसी भी एजेंट को हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम लर्न नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा सेट भी नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो जो एजेंट है वो खुद एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होके खुद एक्शन लेगा, खुद देखेगा कि पॉजिटिव रिवार्ड उसको मिल रहे हैं या नेगेटिव रिवार्ड मिल रहे हैं, तो उसके बेस पर वो एक्शन फाइनल करेगा और अपने ही क्वेश्चन का आंसर खुद ही फाइंड आउट करेगा और एक फॉर्मुलेट करेगा उसको, है ना, और एक मैथमेटिकली एक पूरा उसका प्रोसेस तैयार करेगा और इसी को अपन क्या बोलते हैं मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हाउ वी फॉर्मुलेट reinforcement लर्निंग प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली यूजिंग MDP, we need to develop our intuitions about the agent environment relationship क्या है, मार्को प्रॉपर्टी क्या है, मार्को प्रोसेस एंड मार्को चेन्स क्या है, मार्को रिवार्ड प्रोसेस क्या है, वेलमैन इक्वेशंस, मार्को रिवार्ड डिसीजन प्रोसेस, और ग्रेव योर कॉफी एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो अभी अपन नेक्स्ट क्लासेस में इनको और भी ज़्यादा अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं
एक इमेज में दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए आप लोग किस तरीके से गेम्स प्ले रीइंफोर्समेंट लर्निंग में रहता है। फुटबॉल दिखाई दे रही है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप लोग एजेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एजेंट्स मतलब गेम प्लेयर, जो प्लेयर हैं वो एजेंट्स कहलाएंगे। और देर आर फोर प्लेयर, टू 2+2 मतलब एक टीम में दो हैं और दूसरी टीम में दो हैं, वो एक फुटबॉल को अपनी तरफ लेके जाके गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको पहले से नहीं पता कि कैसे इन्वायरमेंट से या फुटबॉल को हम कैसे लेके जाना है, किस ट्रिक से कैसे पास करना है उसको, है। तो वो सारी चीज़ें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेस पर ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, और उन स्टेट को स्टोर करके रख लिया जाता है। उन स्टेट को स्टोर किया जाता है, किस स्टेट में हमने क्या डिसीजन लिया जिससे हम सक्सेस हुए, है ना। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या है। क्लियर।